تم پٹری سے اتر رہے ہو، شیخ نے اسے ٹوکا۔ یہ بتاؤ کہ سکندر صاحب کس وقت ملے تھے تمہیں؟ وہی تو بتا رہا ہوں تھانے دار صاحب، ٹیڈی نے عاجزی سے کہا۔ پہلوان کہنے لگا کہ یار ماں بیمار ہے، جلدی گھر پہنچنا ہے، اس کو دوائی دینی ہے، ورنہ سواریاں تو رب کی مہربانی سے اتنی کہ رات مک جاتی ہے ڈھوتے ڈھوتے۔ خیر جی، ہم نے کہا چلو چلتے ہیں۔ اس وقت بجے ہوں گے یہی کوئی 10۔ اتفاق سے میں نے سکندر صاحب کو اور محسن صاحب کو دیکھ لیا اور ان کو بھی ادھر ہی جانا تھا۔ ہم پہلے تو سب بیٹھ گئے تانگے میں، پھر راستے میں ہم نے کہا سکندر صاحب آؤ آپ کو چائے پلائیں، بڑے دن بعد ملے ہو۔ اپنے اڈے پر ایسی ملائی والی چائے ملتی ہے تھانے دار صاحب کہ آپ کو کہیں پورے لاہور میں نہیں ملے گی۔ ہم وہاں 12 بجے تک بیٹھے رہے۔ اس ہوٹل کا مالک ہے شیرو، اس نے بھی دیکھا تھا، اور بھی بہت سے لوگ تھے، سب آ سکتے ہیں گواہی دینے۔ میں سمجھ گیا کہ محسن نے اسے تمام صورتحال سمجھا دی ہے اور باقی سب کچھ استاد ٹیڈی کے حسن انتظام کی دلیل ہے۔ اگر اس نے کسی پہلوان تانگے والے اور کسی ہوٹل کے مالک شیرو کا حوالہ دیا ہے تو اسے یقین ہوگا کہ ضرورت پڑنے پر یہ دونوں گواہ اس کے بیان کی صداقت ثابت کرنے کے لیے ضرور آ جائیں گے۔ بے شک یہ گواہی جھوٹی ہوگی، مگر جس نظام کی بنیادی شہادت پر ہو اور جس میں سچ کو جھوٹ ثابت کرنے والے پیشہ ور گواہ عدالتوں کے احاطوں کے طواف کرتے ہوں، پیشہ ور ضامن بے وجود یا جعلی کاغذات سے صاحب جائیداد بن کے حاضر ہوتے ہوں، دنیا و عقبہ کے خوف کے خیال دل میں لائے بغیر حلف اٹھاتے ہوں، وہاں اور کیا ہو سکتا ہے؟ غلط کام میں بھی کر رہا تھا اور دل کو یہ تسلی بھی دے سکتا تھا کہ میں تو صرف ایک سچ کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹے گواہ لانے پر مجبور ہوں، مگر یہ جواز صرف بقا کی جدوجہد کے معیار پر درست تسلیم کیا جا سکتا تھا جس کا اخلاق کے معیار سے رشتہ نہ ہو، ورنہ کسی معاشرے، مذہب یا قانون کا کوئی اصول میرے فعل کو قبولیت کی سند نہیں دے سکتا تھا۔ یہی میرا اور میرے دور کا المیہ تھا کہ اصولی اور عملی زندگی کے راستے وضع اور متضاد سمتوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور سقراط کی طرح زہر کا پیالہ اٹھانے والا عقل و ہوش سے بیگانہ قرار دیا جاتا تھا۔ پھر میں یہ پیالہ کیسے اٹھاتا جو اس وقت کا حصہ تھا؟ رابعہ 11 بجنے میں 5 منٹ پر نمودار ہوئی۔ ٹھیک 11 بجے میرا نام پکارا گیا اور اندر جاتے ہوئے میں نے رضوی صاحب کو گاڑی سے اترتے اور منظر کو ہانپتے ہوئے ہجوم میں سے راستہ بناتے دیکھا۔ عدالتی کارروائی میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوا۔ وکیل استغاثہ کی طرف سے میری ضمانت منسوخ کرنے کی رسمی سی استدعا کی گئی۔ پبلک پروسیکیوٹر نوجوان سا لڑکا تھا جو بار بار رابعہ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے اندازہ کیا کہ رابعہ یقیناً پہلے ہی اس سے بات کر چکی ہے۔ پھر سب انسپکٹر شیخ نے اپنا بیان قلم بند کروایا۔ اس نے بہت اختصار سے کام لیا اور اپنے بیان کو بنیادی حقائق تک محدود رکھا، جس میں عبدل کے ٹیلی فون، محرر کے لکھے ہوئے بیان، ٹیپ کے غائب ہونے اور ٹیلی فون پر ملنے والی دھمکی، سب کا ذکر آ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ یہ حقائق عدالت کے ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہے اور اس کیس سے دستبردار ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ نے استدعا کی کہ محرر کے لکھے ہوئے عبدل کے اس بیان کو بھی عدالت اپنے ریکارڈ پر رکھے جو اس نے مرتے وقت دیا تھا، کیونکہ نامعلوم افراد کی طرف سے دھمکیاں موصول ہونے کے بعد یہ اندیشہ ہے کہ ٹیپ کی طرح یہ تحریر بھی غائب ہو جائے گی۔ پھر اس نے وکیل استغاثہ کی درخواست مسترد کرنے کے لیے اپنے دلائل پیش کیے اور صفائی کے ایک گواہ استاد ٹیڈی کا بیان ہوا۔ حسب توقع فیصلہ یہی ہوا کہ موجودہ حالات میں ضمانت کی منسوخی کا کوئی جواز نہیں۔ عبدل اور شیدے کے قتل کی تفتیش ہنوز نامکمل ہے اور ظاہری شہادت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ واردات سے سکندر بخت کا کوئی تعلق ہے۔ عدالت نے صفائی کے دوسرے گواہ یعنی محرر کی غیر حاضری کو نوٹ کیا اور میر محمد کے خلاف تفتیش کے لیے بھی احکامات جاری کیے جو سب انسپکٹر شیخ کے بیان کے مطابق ٹیپ غائب کرنے کا ذمہ دار تھا، اور یہ بھی حکم دیا کہ اگلی پیشی پر وہ خود حاضر ہو کے ان الزامات کا جواب دے۔ تاہم کیس کی تفتیش سے سب انسپکٹر شیخ کی دستبرداری کے عذر کو عدالت نے ناکافی وجوہات کی بنا پر قبول نہیں کیا اور اسے پولیس کے اعلیٰ حکام کا مسئلہ قرار دیا۔ سب انسپکٹر شیخ چاہے تو اپنی درخواست افسرانے بالا کو بھیج سکتا ہے۔ محرر کے لکھے ہوئے بیان کو عدالت نے اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کی ایک مصدقہ نقل پولیس کو فراہم کرنے کی تاکید کی۔ اس تمام کارروائی کے دوران میں اپنے آگے پیچھے دیکھتا رہا۔ منظر میرے سامنے پہلی قطار میں موجود تھا اور رابعہ نے کئی بار اس سے مشورہ بھی کیا۔ پیچھے کی بینچوں پر غیر متعلقہ افراد بھی موجود تھے لیکن ان میں سے کسی کا چہرہ جانا پہچانا نہیں تھا۔ محسن دوسری قطار میں استاد ٹیڈی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بعد میں سب انسپکٹر شیخ بھی ان کے ساتھ جا بیٹھا اور میں نے محسن کو اس سے ہاتھ ملاتے دیکھا جو ایک طرح سے اس کی حق گوئی اور بے باکی اور آئین جوان مردی کو خراج تحسین تھا۔
رضوی صاحب کی عدم موجودگی کو میں نے خصوصاً نوٹ کیا۔ شاید وہ عمدن باہر رہے تھے۔ ایس پی کی حیثیت سے وہ غیر معروف شخصیت نہیں تھے، چنانچہ ان کا سماعت کے دوران حاضر رہنا سب کی نظر میں آتا۔ آئندہ تاریخ سماعت 1 ماہ بعد مقرر ہوئی اور ہم سب باہر نکلے تو 1 بج رہا تھا۔ عدالت کی کارروائی میں بھی وقفہ آ گیا تھا۔ سب سے پہلے جج کے اٹھتے ہی منظر نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ بس جا اور قتل کر، قتل عام کر سالے، بس فکر مت کرنا۔ وہ ہنسا۔ ابے جب رابعہ جیسی وکیل ہوگی تو کوئی تیرا کیا بگاڑے گا؟ تو خود ہی بگڑ جائے تو اور بات ہے۔ وہ بے حد باتونی شخص تھا۔ مجھ سے بات کرتے کرتے وہ شیخ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ سب انسپیکٹر شیخ۔ تم نے تو ثابت کر دیا کہ آج کل بھی سچ بولنا ممکن ہے۔ بہت ہمت کی بات ہے بھائی۔ میرا خیال ہے ضمانت منسوخ نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب شیخ کا بیان ہے۔ میں نے کہا یہ میری خوش قسمتی ہے یا تائید عزدی کہ کیس شیخ کے پاس تھا، ورنہ ان کی خاموشی مجھے مزید 2 افراد کے قتل کے الزام میں ملوث کر سکتی تھی۔ ان کی جرت، اظہار، اصول پرستی اور ایمانداری نے مجھے تختہ دار تک پہنچنے سے بچا لیا ہے۔ میری زندگی ان کا قرض ہو گئی ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ؟ سب انسپیکٹر شیخ نے کہا۔ میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ یہی تو کمال ہے آپ کا، ورنہ فرض کا احساس کہاں ہے اور کسے ہے؟ رابعہ نے کہا۔ آپ پہلے ہی فرض شناسی کا نقصان اٹھا چکے ہیں اور مجھے تو ڈر ہے آج آپ نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ اپنی نوکری ہی نہیں، زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے، اور جب یہ بات مد نظر رکھی جائے گی کہ آپ نے دھمکیاں بھی وصول کی تھیں تو واقعی یقین نہیں آتا۔ مس رابعہ، اصول پرستی میں کبھی کسی نے دنیا میں مادی فوائد حاصل نہیں کیے۔ اگر میں 5 لاکھ لے کر خاموش ہو جاتا یا دھمکی سے ڈر جاتا تو اپنا ایمان ہی نہیں، ایک بے گناہ شخص کی زندگی بھی بیچتا جو میرے نقطۂ نظر سے قتل ہوتا۔ میں فرشتہ نہیں ہوں، آپ سب بھی جانتے بوجھتے کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ قسم مولا علی کی تھانے دار بادشاہ، استاد ٹیڈی نے آگے بڑھ کر شیخ کے ہاتھ تھام لیے۔ تم چاہے نہ مانو، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو تم نے کیا وہ کسی ہم جیسے گناہگار انسان کے لیے ناممکن تھا۔ تم واقعی فرشتہ ہو۔ کبھی ضرورت پڑے تو کہنا کہ جان چاہیے، قسم مولا علی کی، ٹیڈی سر کے بل آئے گا۔ اچھا اب چلیں آپ سب لوگ، بہت ہو چکی قصیدہ خوانی، شیخ نے کہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ کیس کسی اور کے سپرد کر دوں۔ اجلت میں یہ فیصلہ مت کرو شیخ، میں نے کہا۔ یہ نہ ہو کہ کیس تمہارے ہاتھ سے نکلے تو حشمتان جیسے شخص کے سپرد ہو جائے، اور تم آخر ڈرتے کیوں ہو؟ سچ بولنے والے تو رشتوں کی ٹوٹ جانے کی پرواہ نہیں کرتے، اور تم جیسا شخص تو دوست رہ کے بھی جانبدار نہیں ہو سکتا۔ اگر حقائق مجھے مجرم ثابت کریں گے تو تم کسی کا لحاظ نہیں کرو گے، مگر اس میں میرے لیے یہ اطمینان تو ہوگا کہ میرے ساتھ انصاف ہوا۔ میر محمد اور حشمت خان تو ایسے لوگ ہیں کہ جس کی گردن میں فٹ آ جائے اسی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالتے پھرتے ہیں۔ مجھے ان کے حوالے کیوں کرتے ہو؟ مجھے قطعی احساس نہیں تھا کہ حشمت خان اور حوالدار بجلی کان لگائے ہماری گفتگو کا ایک ایک لفظ سن رہے ہیں۔ ان کی حیثیت پٹے ہوئے مہرے سے بدتر تھی، خصوصاً حوالدار بجلی کا تو سارا کرنٹ ختم ہو گیا تھا۔ رضوی صاحب عدالت کے باہر مجھے اس وقت ملے جب شیخ، استاد ٹیڈی اور دوسرے سب لوگ جا چکے تھے۔ میرے ساتھ صرف رابعہ اور محسن رہ گئے تھے۔ تم لوگ میرے ساتھ چلو، انہوں نے کہا، اور میں نے اندازہ کیا کہ ان کا موڈ کچھ آف ہے۔ لیکن انکل، میری گاڑی، رابعہ نے کہا۔ وہ میرا شوفر لے آئے گا، انہوں نے کہا۔ تم بیٹھو اندر۔ تم بھی محسن، مجھے کچھ کہنا ہے تم سب سے۔ ان کی جیپ ڈسٹرکٹ کورٹ کے احاطے سے نکلی اور مال روڈ پر دوڑنے لگی۔ آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ رابعہ نے ہمت کر کے کہا۔ ہاں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ مجھ سے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ مجھے بے وقوف کیوں بناتے ہو؟ کیا تمہیں اعتماد نہیں ہے مجھ پر؟ وہ یکلخت پھٹ پڑے۔ کیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ محسن اور میں نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے آپ سے بہت جھوٹ بولے ہیں، لیکن یہ غلط ہے کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں، رابعہ نے کہا۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ تم کو معلوم تھا کہ شہلا کی ماں مر چکی ہے، تم جانتے تھے کہ ڈسلوا مر چکا ہے۔ آپ سے کس نے کہا کہ ہمیں یہ بات معلوم تھی؟ میں نے ہمت سے کام لے کر کہا۔ اگر محسن یا رابعہ کو یہ بات معلوم تھی تو انہوں نے مجھے نہیں بتائی، میں قسم کھا سکتا ہوں۔ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ محسن نے احتجاج کیا۔ میں صبح سے ٹیڈی کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، پھر تو میں ہی رہ گئی۔ میں نے ہی کسی عدالت میں یا بار روم میں سنی ہوگی یہ بات، رابعہ نے تلخی سے کہا۔ دیکھو، یہ سب کچھ تم لوگوں نے طے شدہ پروگرام کے مطابق کیا ہے، رضوی صاحب نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں نے جانتے بوجھتے شہلا کو اسلام آباد بھجوا دیا تاکہ وہ اپنی ماں کی مسخ شدہ لاش نہ دیکھے اور ہر قسم کی تحقیق و تفتیش سے بچ جائے۔ شہلا وہ ڈیڈی کے ساتھ چلی گئی ہے؟ محسن نے بے یقینی سے کہا۔
हाँ, मैंने जवाब दिया, और इसे अंकल शेरवानी ने और फौजिया ने मजबूर किया था, मैंने नहीं। यकीन नहीं तो घर जाके फोन पर इनसे बात कर लेना, वो भी अब घर पहुंचने ही वाले होंगे। लेकिन पहले मुझे ये बताइए अंकल कि आपने ये कैसे फर्ज कर लिया कि हमें वो सब कुछ मालूम था जो आपको मालूम हो गया है? मेरे पास कोई सबूत नहीं, मगर मैं जानता हूँ कल रात तुमने मुझे अपने फरार की जो कहानी सुनाई थी वो 100% सच नहीं थी। तो आप बता दीजिए कि पूरा सच क्या था? मैंने कहा, और मेरे सच में झूठ की आमेजिश का तनासब आपने क्या निकाला है और कैसे निकाला है? देखो बरखुरदार, तुम्हारे मामले में मेरे 2 किरदार हैं, मेरी शख्सियत के 2 हिस्से हो गए हैं और इनको मरबूत रखना मेरे लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। रिजवी साहब ने तल्ख लहजे में कहा, एक तरफ मैं SSP हूँ, दूसरी तरफ तुम मुझे अंकल कहते हो। मैंने कभी अपने फराइज से पहलूतही नहीं की, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि जुल्म तुम्हारे साथ हुआ है। ताहम मैं तुम्हारी तरह ये नहीं कर सकता कि जुल्म करने वालों से खुद निमटने लगूं। निज़ाम इंसाफ में लाख खराबियां सही, फिर भी इससे बेहतर निज़ाम और क्या होगा? अमली सूरत को मत देखो जिसे हमने मसख कर रखा है। असूली तौर पर ये 1 सदी से ज्यादा के अरसे में मुकम्मल हुआ है और तकमील का ये अमल अभी जारी है, मगर इस निज़ाम ने जिंदगी के हर शोबे का अहाता कर रखा है। हम इसको बेहतर बनाने के लिए यही कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी में खुद इसको अमली तौर पर कबूल करें और इसके पाबंद हों। इस वक्त भी जब हमें कोई पुलिसमैन ना देख रहा हो, अगर इसमें खराबियां पैदा करने वाले हम खुद हैं तो इस निज़ाम के मोर्दे इल्जाम ना ठहराएं और फिर मनमानी ना करें। अगर हर शख्स कानून को बेबस और बेअसर समझ के खुद अपना निज़ाम इंसाफ वज़ा करने लगे, खुद मुद्दई हो और खुद ही मुंसिफ भी हो, तो ये कानून जंगल का कानून होगा। मुआशरे में, किसी भी दुनिया के मुहज़्ज़िब मुआशरे में इज्तिमाई कदरों को फ़रोग़ होता है। ये ना हो तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे इर्द गिर्द यही हो रहा है अंकल, और इसके जिम्मेदार हम नहीं आप हैं। मेरा मतलब है वो जो हमारे पेशरू थे, जिन्होंने हमारे लिए ये माहौल पैदा किया जिसमें हमने परवरिश पाई। मैंने कहा, हमने तो अभी अमली जिंदगी में कदम भी नहीं रखा, इन सब खराबियों के जिम्मेदार हम कैसे हो गए? हर दौर में नई नस्ल को मोर्दे इल्जाम करार दिया जाता है कि वह अखलाकी कदरों को पामाल कर रही है। मौशरती खराबियों का सारा बोझ इन पर डाल दिया जाता है जो नौजवान कहलाते हैं। क्या वो लोग बिल्कुल बेकसूर होते हैं जो इन नौजवानों की परवरिश करते हैं, इनके अखलाको किरदार के निगरां कहलाते हैं और जिनके नक्शे कदम पर नौजवान चलते हैं? न जाने कब से लोग कहते आ रहे हैं कि जी क्या जमाना आ गया है, हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, वैसा नहीं होता था और हम तो गोया फरिश्ते थे। कुर्बे क़यामत की निशानियां किस दौर में नजर नहीं आई? इनको जो बुजुर्ग हो जाते थे कोई उनसे सवाल नहीं करता कि जनाब क्या इन नौजवानों के सने बलोगत को पहुंचते ही रातों रात दुनिया अखलाकी तौर पर दिवालिया हो गई? पहले हर शख्स नेक था, परहेजगार और पाबंदे सोमो सलात था, मुहज्जिब, बाहया और कानून का एहतराम करने वाला था। फिर दुनिया इन जैसी क्यों ना बनी? मसलन मैं और मोहसिन तो पहले स्कूल कॉलेज में थे, फिर लंदन चले गए। यहाँ जो कुछ हुआ इसमें नौजवान नस्ल का हिस्सा कितना था? मीर शराफत अली, चौधरी दिलावर, चिराग दीन, पेड्रो, ये सब आपके और अंकल शेरवानी के दौर के लोग हैं। यहाँ मुआशरे की बागदौड़ उन्हीं के हाथ में थी। हमें तो वापसी पर ये दुनिया वैसी ही मिली जैसी नजर आती है, वो नहीं जो होनी चाहिए थी। ठीक है, मैं इत्तफाक करता हूँ, मगर तुम्हारा काम भी तो ये नहीं कि इन खराबियों में इजाफा करो। जुल्म होता देखो तो जालिम बन जाओ, किसी को चोरी करते, डाका डालते देखो तो डाकू बन जाओ। रिजवी साहब ने नरम पड़ते हुए कहा। राबिया ने बेहद अजीब नजरों से मुझे देखा। इन नजरों में फख्र और मुसरत के जज्बात भी थे और सताइश के भी। तुमको इन खराबियों के खिलाफ जहाद करना है, ना कि इन खराबियों का शिकार हो जाना चाहिए। आखिर ये काम कौन करेगा? खैर, मैं जानता हूँ ये फलसफियाना बहस कभी खत्म नहीं होगी। ये बताओ, क्या तुम्हें वाकई डिसिल्वा की मौत का इल्म नहीं था? जरा सी देर के लिए मैं मुखमस्से में पड़ गया, लेकिन मेरी दानिश ने बरवक्त मुझे खबरदार कर दिया। अब सच बोलने से कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय खराबी के और झूठ के, जिससे किसी को नुकसान ना हो, जो मजबूरी में बोला जाए और सच के मुकाबले में कम मुज़र हो। बहरहाल बेहतर है। मुझे अब तक यकीन नहीं कि मेरा एक इतना बड़ा दुश्मन नहीं रहा। मैंने कहा, आपको किसने बताया? मैंने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जैसा कि मैंने कहा था। रिजवी साहब ने कहा। 10 बजे के करीब मुझे इत्तला मौसूल हुई कि हादसे में तबाह हो जाने वाली एक गाड़ी में से एक बूढ़ी औरत की लाश मिली है। मुझे शिनाख्त के लिए बुलाया गया था। मैं जाए वारदात पर पहुंचा, यानी बागबानपुरे वाली सड़क के आखिरी मोड़ पर, वो सड़क जो नहर के साथ धर्मपुरे की तरफ से जाती है। और वहां पहुंच के मैंने शहला की माँ को तो पहचान ही लिया। मुझे ये भी मालूम हुआ था कि इसी में डिसिल्वा भी हलाक हो गया है।
गोया डिसिल्वा ही शहला की माँ को अगवा करके ले गया था और हादसे का शिकार हो गया। नहीं, यही बात मेरी समझ में नहीं आती, रिजवी साहब ने कहा। एक तो हादसे की कोई वजह नहीं, डिसिल्वा शराब के नशे में नहीं था और गाड़ी दरख्त से टकराई है, किसी गाड़ी से नहीं। फिर गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा होता है कि हादसे के वक्त इसकी रफ्तार कम से कम 50 मील फी घंटा जरूर थी। हो सकता है इसने सामने से आने वाली किसी गाड़ी से तसादुम को बचाने की कोशिश की हो, मैंने कहा, और गाड़ी बेकाबू हो गई हो। ये सिर्फ फर्ज किया जा सकता है, रिजवी साहब ने अदम इत्तफाक की कोई सूरत ना पाके कहा। ये भी फर्ज किया जा सकता है कि इसके ब्रेक फेल हो गए थे, मगर हकायक कुछ और हैं। तुमने इसे किस वक्त देखा था? तकरीबन रात के 1 बजे, मैंने कहा। मुमकिन है 1:30 का वक्त हो। तुम सुबह के 5:30 बजे वापस पहुंचे थे और बज़ाहिर तुमने ये फासला दौड़ते हुए तय किया था। तुम्हारी हालत से यही जाहिर होता था, और ये भी मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास कोई सवारी नहीं थी। ये फासला तुमने कितनी देर में तय किया था? रिजवी साहब ने कहा। मेरा ख्याल है 1 घंटा तो लगा होगा मुझे, मैंने कहा। मोहसिन ने मेरा हाथ दुबा के मुझे मोहतात होने की ताकीद की। शेरवानी साहब और इनकी बेटी 3 बजे सुबह पहुंचे थे, रिजवी साहब ने कहा, और वो गाड़ी में लाए गए थे जिसने उन्हें ऐन मेरी कोठी के दरवाजे पर उतारा था। गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट थी तो वो नहीं देख सके, लाइट ऑफ थी और वो घबराए हुए भी थे, मगर ये कहा जा सकता है कि वो आधे घंटे से कम में तकरीबन 20 मिनट में पहुंचे होंगे। गोया 2:45 बजे के करीब वहां से रवाना हुए होंगे। इस हिसाब में कोई गलती है तो बताओ कि जो फासला एक शख्स पैदल चल के 1 घंटे में तय करे, वो कार में ज्यादा से ज्यादा 1/4 वक्त में तय हो जाए। तुमने किसी से लिफ्ट नहीं ली थी, कोई रिक्शा या टैक्सी तुम्हें नहीं मिली थी, और जाहिर है इतनी रात गए तुमने 5 मील की दौड़ नहीं लगाई थी। इतने तवील रास्ते पर गश्ती पुलिस या चौकीदार तुम्हें भागता देखते तो जरूर तुम्हारे पीछे लग जाते। इससे ये भी साबित होता है कि तुम्हें 1 घंटे से ज्यादा वक्त लगा होगा। औसतन आदमी 3 मील फी घंटा की रफ्तार से चलता है, तेज चले तब भी 4 मील से ज्यादा की रफ्तार नहीं हो सकती, और ये रफ्तार भी 1-2 मील तक बरकरार रह सकती है, बाद में घट जाती है। खैर ये बताओ कि जब तुमने सिराज को काबू करके फौजिया और शेरवानी को भेजा तो क्या डिसिल्वा वहाँ मौजूद था? जी, इस वक्त वो वहीं था, मैंने गौर करके कहा। और तुम्हारे पहुंचने के कितनी देर बाद इनको रहाई मिली थी? 1-1.5 घंटे बाद, मैंने कहा। आप क्या नतीजा हासिल करना चाहते हैं इससे? और तुम इनके रवाना होने के कितनी देर वहाँ रहे थे? रिजवी साहब ने मेरे सवाल को दरखोरे इतना नहीं समझा। मैं तकरीबन इनके साथ ही, चंद मिनट के फर्क से, मैंने कहा। लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मेरा भी यही ख्याल था, रिजवी साहब ने कहा। जब तुमने एक बार सिराज को काबू कर लिया था तो जाहिर है इसे 1 घंटे तक पकड़े नहीं खड़े रहे होगे। तुमने पहले शेरवानी और फौजिया को छुड़वाया और इसके बाद डीएसपी सिराज को ढाल बनाते बाहर आ गए, राइट? फर्ज करो 10 मिनट बाद। गोया तुम 3 बजे वहां से रवाना हुए और तुम्हारे कहने के मुताबिक 1 घंटे में घर पहुंच गए, लेकिन इस तरह तुम्हें 4 बजे पहुंच जाना चाहिए था। 1.5 घंटा तुम कहाँ रहे? रिजवी साहब ने मुझे ट्रैप कर लिया था। वक्त के उल्ट फेर में 1.5 घंटे का फर्क निकल आया था। मैंने अंदाजों की बुनियाद पर बात की है, आप सही वक्त को मद्देनजर रख के हिसाब लगा रहे हैं, मैंने कहा, मगर साफ जाहिर था कि मेरा लहजा इत्तमाद से खाली है। अच्छा ये भी माना। ये बताओ जब तुम रवाना हुए तब भी डिसिल्वा वहीं मौजूद था? जाहिर है होगा। फिर सवाल ये पैदा होता है कि सुबह के तकरीबन 5-6 बजे वो शहला की माँ को उधर से लेकर मुखालिफ सिमत में कहाँ जा रहा था? रिजवी साहब ने कहा। क्या मौत के वक्त का तयन हो गया है? मैंने कहा। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक इसे मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, रिजवी साहब ने कहा। सुबह 6 बजे एक शख्स ने कहीं से फोन करके हादसे की इत्तला दी। इसने अपना नाम नहीं बताया था। पुलिस 6:30 बजे पहुंची और एक इंस्पेक्टर ने मुझे बताया है कि खून का रंग और महक बाकी थे। खून कुछ जम गया था लेकिन कुछ इस वक्त भी रस रहा था। चुनाचे इसने ये ख्याल जाहिर किया कि हादसे के कुछ देर बाद ही किसी ने गाड़ी देख ली। सड़क की दूसरी तरफ बंगले हैं, वहीं से किसी ने फोन कर दिया। गोया वक्त वही 5 और 6 बजे के दरमियान का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हतमी तौर पर यह बात मालूम हो जाएगी, मगर जो बात मैं नहीं समझ सका वो कुछ और है। मेरे इमाम पर एक पुलिस पार्टी वहां गई थी जहां तुम्हें ले जाया गया था। उन्होंने बड़ा तफसीली मुआयना किया लेकिन किसी कतई नतीजे पर नहीं पहुंच सके। उन्हें गैराबाद कमरों में और आसपास कोई सुराग नहीं मिला जिससे साबित होता कि रात को वहां कुछ लोग मौजूद थे। पैरों के निशानात क्या, गाड़ियों के टायरों के निशानात तक नहीं थे। खिड़कियां दरवाजे सब बंद थे सिवाय एक खिड़की के। जाहिर है वो इसी में से निकल गए और जाते जाते अपनी मौजूदगी की तमाम इलामात मिटा गए, मैंने कहा।
हाँ, लेकिन डिसिल्वा की गाड़ी को ये हादसा वहाँ से आते हुए पेश नहीं आया। ऐसा मालूम होता था कि वो वहाँ जा रहा था। वो ग्लोब सिनेमा के पास रहता है। अगर उसे ये ख्याल था कि शहला की माँ को अपने घर ले जाए, तब भी ये सिमत बिल्कुल उल्टी है। कार का रुख दूसरी जानिब होना चाहिए था। रिजवी साहब ने कहा, अगर इसे शहला की माँ को कहीं और ले जाना था तब भी ये गलत है। ऐसी सूरत में हादसा दारोगा वाला की जानिब कहीं होता या मुखालिफ सिमत में बागबानपुरे की तरफ। अब आपका क्या ख्याल है, ये भी साफ बता दीजिए। मुंतकी एतबार से आपने मुझे कायल कर लिया। मेरा ख्याल ये है मियाँ सिकंदर आजम कि तुमने डिसिल्वा को मजबूर किया कि वो तुम्हें कहीं ड्रॉप करे। रिजवी साहब ने एक बार पलट के मुझे देखा और फिर गाड़ी मोड़ ली। इस वक्त तुम्हारे जहन में ये ख्याल नहीं था कि 5 मील की दौड़ लगाई जाए। जब बाहर एक गाड़ी मौजूद हो तो कोई ये खतरा कैसे मोल ले सकता है। एक सूरत ये थी कि तुम गाड़ी के टायर फ्लैट कर दो, मगर इसके लिए तुम्हें गोली चलानी पड़ती। दूसरी बेहतर सूरत ये थी कि तुम इसी गाड़ी को इस्तेमाल करो। इतनी रात गए तुम रिक्शा या टैक्सी मिलने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। घर से 5 मील दूर थे और तुम्हें जल्द से जल्द घर पहुंचने की फिक्र थी। सिराज, जो तुम्हारे ख्याल के मुताबिक गिरोह का सरगना है, तुम्हारी गिरफ्त में था। तुम इसके दोनों हाथ तोड़ चुके थे। क्या इसके बाद तुमने सिराज का रिवॉल्वर नहीं निकाल लिया होगा? ये इसी सूरत में मुमकिन है जब मैं फर्ज कर लूं कि सिराज गैर मुसल्ला था, मगर किसी खतरनाक गिरोह का सरगना अपने पास रिवॉल्वर ना रखे, और वो भी एक पुलिस अफसर जिसे सरकारी तौर पर रिवॉल्वर मिलता है और नाजायज असलाह बरामद करने के मौके मिलते हैं, तो इसमें से खुर्द-बर्द के मौके भी मिलते हैं। तुमने रिवॉल्वर की मदद से डिसिल्वा को गाड़ी चलाने पर मजबूर किया और वो तुम्हें छोड़ के वापस जा रहा था जब ये हादसा पेश आया। तुम्हें ये मालूम नहीं था कि डिक्की में शहला की माँ है। जैसे ही वो तुम्हें नहर के पुल के आसपास कहीं छोड़ के वापस हुआ, तुम गाड़ी से चिमट गए। तुम्हारे पास सिराज का रिवॉल्वर था, इससे तुमने पीछे का विंड स्क्रीन तोड़ा। मेरा ख्याल है जब डिसिल्वा ने गाड़ी को बैक किया होगा तो अचानक छलांग मार के तुम बोनट पर चढ़ गए होगे। पहले तुमने कोशिश की होगी कि वो रिवॉल्वर से डर के रुक जाए, मगर वो बदहवास और खौफजदा होके भागा और इस कोशिश में गाड़ी बेकाबू हो गई। ये फासला चंद मिनट का है। इससे वाज़िया हो जाता है कि डिसिल्वा मुखालिफ सिमत में क्यों जा रहा था, शहला की माँ कैसे मारी गई और तुमको घर पहुँचते पहुँचते 5:30 कैसे बज गए। अब ये बताओ कि सिराज का रिवॉल्वर कहाँ है? वो मैंने नहर में फेंक दिया था। मैंने इस वक्त कहा जब गाड़ी घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। रिजवी साहब ने अपनी जहानत से तकरीबन सही सूरत हाल का अंदाजा कर लिया था और मेरे लिए इतराफ़े जुर्म के सिवा चारा नहीं रहा था। मेरे साथ मोहसिन और राबिया भी शर्मसार बैठे थे। राबिया कुछ खफा थी क्योंकि अभी तक हमने इसे भी शरीके राज नहीं किया था। देखो, फिर झूठ मत बोलना, रिजवी साहब ने सख्त लहजे में कहा। इस रिवॉल्वर की मदद से बहुत कुछ मालूम हो सकता है। मुमकिन है वो सरकारी रिवॉल्वर हो। इसके सीरियल नंबर से मालूम हो सकता है कि ये किसको दिया गया था। क्या इसका नाम सिराज नहीं है? मैंने नीचे उतरते हुए कहा। नहीं, मैंने मालूम कर लिया है। यहाँ सिराज नाम का कोई एएसपी, डीएसपी या एसपी नहीं है। किसी थाने में एसएचओ तक सिराज नहीं है। पर्सनल ब्रांच ने मुझे बताया है कि एक सब इंस्पेक्टर मजंग थाने में है और दूसरा मिस्री शाह के इलाके में, जिनके नाम में सिराज आता है। उनमें से एक छुट्टी पर लायलपुर गया हुआ है और दूसरा रिटायर होने वाला है, यानी अढेर उम्र का आदमी है। इस जगह की निशानदही कर सकते हो जहाँ तुमने रिवॉल्वर फेंका था? मैंने फकत इकरार में सर हिलाया। फिर बेगम रिजवी नमूदार हुई और हम खामोशी से अंदर चले गए। क्या बात है, सूरतें क्यों उतरी हुई हैं? उन्होंने कहा। जमानत मंसूख हो गई क्या? जमानत मंसूख हो जाती तो ये हजरात यहाँ नजर आते, रिजवी साहब ने तन से कहा। मोहसिन बहुत हद तक हकायक से बाखबर था, मगर मुझे मौका ही नहीं मिला था कि राबिया को कुछ बता सकूं। मौका इस वक्त भी नहीं था। खाना तकरीबन तैयार था। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि मियो अस्पताल से टेलीफोन मौसूल हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शहला की मां की लाश लेकर एक एम्बुलेंस रवाना हो चुकी थी। शाम तक इस गरीब लावारिस औरत की तदफीन बड़ी सादगी और खामोशी से हुई। जनाजे में मुश्किल से 20 अफराद शरीक हुए, जो मियानी साहब के कब्रिस्तान से 1 घंटे में लौट आए। मैंने और मोहसिन ने लौटते हुए राबिया की माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ी। पहले राबिया की माँ, फिर शहला की माँ, और अब होगी मोहसिन की माँ की बारी। फरिश्ता अजल ने मेरे बाप का इंतखाब किया था, बाकी सबकी माओं का। ये फजूल व बेसरोपा ख्याल मेरे जहनी इंतशार का आईनादार था। शाम का अंधेरा एक सोगवार रात के अंधेरे में ढल गया। पूरे घर पर एक मातमी सकूत का गलबा था। किसी ने रात के खाने पर हमें नहीं बुलाया। शायद किसी ने खाना खाया ही नहीं। रिजवी साहब अपने कमरे से नहीं निकले और राबिया अपने कमरे में बंद रही।
मैं और मोहसिन सिगरेटें फूंकते रहे और दबे दबे लहजे में बातें करते रहे। मैंने इसे तफसील से बताया कि गुज़िश्ता शब मेरी अपने दुश्मनों से क्या बातें हुई थीं और डिसिल्वा की मौत तक पेश आने वाले तमाम वाक़यात का मुफस्सल जिक्र किया। इसने मुझे बताया कि उस्ताद टेडी को तलाश करने और इसे सूरत हाल से आगाह करके बयान के लिए तैयार करने में कितनी मेहनत हुई, लेकिन ये मेहनत अकारत नहीं गई। मोहसिन ने कहा, इसने तो कमाल कर दिया। शीदे और अब्दुल के कत्ल का इल्जाम तो अब हम पर नहीं आता। मैंने कहा, शिकारी कोई और चाल सोचें। मेरा ख्याल है सरे दस्त तो इनकी पेशकश कबूल कर ले। मोहसिन ने अचानक कहा, क्या यानी इनके नाजायज कारोबार में इनके साथ शरीक हो जाऊं? मैंने भड़क कर कहा, नहीं, सियासत से काम ले सिकंदर, वो तुझे पार्टनर की हैसियत देने पर तैयार हो गए हैं। पहले अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर ले, इसके बाद देख वो क्या करते हैं। मोहसिन ने कहा, उन्होंने मेरे सामने कुछ शराइत रखी हैं। मैंने कहा, जो मैं कबूल नहीं कर सकता। मसलन उनका मुद्दा है वजीर खान वाले मामले को दुबाना। वो मेरे नुकसानात की तलाफी के लिए तैयार हैं। मकसद ये है कि मैं इसकी मौत को भूल जाऊं, ये बात भूल जाऊं कि उन्हें किस तरह महसूर करके, बेबस करके और मुफलिस करके मारा गया। मैं सलामत शाह, फोमांचू, गुलाम अली और दीगर सब बेगुनाहों के खून की कीमत वसूल कर लूं और खामोश हो जाऊं।